Hello, children. How are you all? Hope you all are fine. Today we are going to learn English poem 11, The Psalm of Life. We are going to study the Psalm of Life. Here P is silent, so it is pronounced Psalm. The Psalm of Life. The meaning of the word psalm means the devotional or the spiritual sacred song, जिसको हम भजन या कोई spiritual devotional song भी कह सकते हैं. So this is the sacred song of life. Okay. This poem is written by Henry Wordsworth Longfellow. In this poem, the poet explains us the importance of life. The poet tells us what is the life about, how we should live our life. Okay, इस पोयम में हमें पोएट लाइफ की इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं. लाइफ में क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए, हमें लाइफ किस तरीके से लाइफ जीनी चाहिए. ओके, वो हमें पोएट ने एक्सप्लेन किया है. So this is a very beautiful and inspiring poem. Through this poem, poet wants to convey to the readers that we all must understand the meaning of life. हमें लाइफ का सही और सच्चा मीनिंग क्या है वो हमें समझाया है. What is the true meaning of life? He says that all human beings are born to lead a great life according to God's plan. He says that all human beings are born to lead a great life. And the meaning of life is not just to enjoy, okay, or just to be in sorrow. We all are made of dust and we all will be back to the dust. ओके, कहते हैं ना हम लोग मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे. दिस बॉडी इज मेड ऑफ डस्ट एंड इट विल रिटर्न टू डस्ट. सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस वर्ल्ड इज टेम्पररी बट आवर सोल इज परमानेंट. मीन्स द बॉडी is temporary, but our soul, the Atma, is permanent. We must struggle and we should be active through our life. Okay, throughout our life, we have to be active, we have to be good and live our life in such a way that we achieve something great and make it meaningful. हमें अपना जीवन ऐसे व्यतीत करना चाहिए जिससे कि हम कुछ अच्छा करें, दिन ब दिन हमारी प्रगति हो, राइट. और हमें लाइफ ऐसे जीनी चाहिए जिसमें हम मेहनत करें और एकदम करेज से हम लोग सब मुसीबतों का सामना करें. सो लाइफ के बारे में बताया है. ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है. लेट अस
read each and every line. Okay, let us recite this and understand. The first line of the first stanza. The first stanza is, life is real, life is earnest, and the grave is not its goal. Dust thou art, to dust returnest, was not spoken of the soul. लाइफ इज रियल, लाइफ है वो रियल है, इट इज अ ट्रूथ. ओके, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट. वी हैव टू बी सीरियस इन आवर लाइफ. ठीक है, लाइफ इज रियल, वो एक सच्चाई है. ओके, इट इज अ ट्रूथ and it is serious. So life is real, life is serious, and the grave is not its goal. So our aim of the life, our goal is not grave. Grave यानी मरना. ओके, जो कब्र होती है, कब्र आपको पता है ना कि कब्र होती है. So the poet is saying that कब्र है वो हमारा गोल नहीं है. दैट इज नॉट आवर गोल, आवर एम. ओके, लाइफ इज सीरियस, लाइफ इज रियल, एंड गोल इज नॉट द ग्रेव. ग्रेव इज नॉट द गोल. ठीक है, डेथ विल कम सम डे, बट दैट इज नॉट आवर गोल. डस्ट टू आर्ट, टू डस्ट रिटर्नेस्ट. ओके, वी आर मेड अप ऑफ डस्ट. हम मिट्टी से बने हैं. वी आर मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, जिसे हम पंच तत्व कहते हैं. एंड वी विल वन डे रिटर्न टू द सेम. ओके, वी विल वन डे रिटर्न टू डस्ट. ओके, डस्ट दो आर्ट एंड डस्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट was not spoken of the soul. This thing was spoken, but it was not for the soul. Okay, soul is permanent. आत्मा है, it will not die. Okay, आत्मा नहीं मरती है. हमारा बॉडी होता है, हमारी जो बॉडी है वो उसमें से सोल निकल जाता है. सो we know that dust thou art, to dust returnest, but this was not spoken for the soul. Not enjoyment and not sorrow. This is second stanza. Not enjoyment and not sorrow is our destined end or way, but to act that each tomorrow finds us farther than today. Okay. It means that poet says that we are not here for only enjoyment or for only sorrow. हमें यहाँ सिर्फ enjoy नहीं करना है, हमें यहाँ सिर्फ दुखी भी नहीं रहना है. Okay, we don't have to feel sorry also, and we don't have to be sorry or be sad, or we have to not have to enjoy extremely. But this is not our destined end or way. This is not the way. Okay, this is not the way which we have to live our life. Okay, so not enjoyment and not sorrow is our destined end or way. So that is not our fate. Okay, that is not the only purpose we are here. Okay, सुख या दुख हमारे जीवन के हिस्से हैं, पर वह हमारा मेन पर्पस नहीं है. Okay, we don't have to be very happy, and we don't have to be very sad. Okay, so we have to live in such a way and make it meaningful. We have to work hard. Okay,
So no enjoyment and no sorrow is our destined end or way, but to act that each tomorrow finds us farther than today. That is not our goal or purpose. We have to work hard. Okay, that is not our way, but to act that each day. पर हमें ऐसे एक्ट करना है, हमें ऐसे वर्क करना है. वी हैव टू वर्क इन सच अ वे दैट आवर टुमारो विल बी बेटर देन टुडे. हमारा आने वाला कल आज से अच्छा हो, ठीक है, बेहतर हो. उसके लिए हमें प्रोडक्टिवली काम करना है. We don't have to waste our time, okay, because the poet says that your fate is depended on the work you do. Okay, your fate, your your fate, your naseeb is also depended on what you do. So we have to act in such a way that our tomorrow is better. Okay, our tomorrow is better than our today. Finds us farther than today. हमारा कल बेहतरीन बनाने के लिए हमें अपने टैलेंट को इंक्रीज करना है, हमें वर्क करना है. हमारे लिए कभी भी परिस्थिति विपरीत नहीं हो सकती. हमारे लिए हमें कर्म करना है. अभी जैसे लॉकडाउन है, ओके, लॉकडाउन इन द सेंस दैट वी आर facing a pandemic. Okay, that doesn't mean that our fate is not good or we should not work. हमें काम नहीं करना चाहिए, हमारा नसीब खराब हो गया है. That is not the thing. We have to work productively. We have to increase our skills so that our tomorrow is better than today. जिससे हमें आने वाले कल की तैयारी करनी है ना. So we have to be positive, we have to work hard, we have to develop the skills and increase the talent. अभी कोरोना है, okay, but we don't have to stop ourselves from working, from learning. We have to learn. ठीक है, अभी आपको भी स्टडीज़ करना है, दूसरा अपना टैलेंट इंक्रीज करना है. सो योर कंडीशंस कांट बी बैड. You have to work productively for your future. In the third stanza, the poet says, in the world's broad field of battle, in the bivouac of life, be not like dumb, driven cattle, be a hero in the strife. Here in this paragraph, the poet says that the world is like a broad field of battle. ये दुनिया है, वो एक युद्ध भूमि है, ठीक है. इट इज़ इट इज़ लाइक अ बैटल फील्ड, ठीक है, जहाँ युद्ध हमें करना है. इन द bivouac of life, here you have to make a correction. The spelling error, print error is given. You have to make C instead of E. यहाँ पर आपको C करना है, okay. So the spelling will be BIVOUAC
UAC. Okay. There is a printing error in your textbook. You have to make the correction. Okay. You have to make C instead of E. आपको लास्ट लेटर, लास्ट अल्फ़ाबेट चेंज करना है, यहाँ पर C लिखना है. इन द bivouac of life, be not like a dumb driven cattle, be a hero in the strife. So the poet says that the world is the broad field of battle. के अपनी दुनिया है वो एक बड़ा सा युद्ध का मैदान है. यहाँ पर हमें काफ़ी कॉम्पिटिटर्स भी मिलेंगे, काफ़ी लोग भी हमें मिलेंगे. सो इन द bivouac of life, bivouac means temporary camp of soldiers. Okay, here you have to change the spelling, and here also you have to change the spelling. You have to remove this E and add C, right? So in the bivouac of life, be not like dumb driven cattle. तो जब bivouac is the term used for soldiers, and here the poet is referring us as the warriors. Okay, हमें वॉरियर की तरीके से कंसिडर किया है और कहा है कि जैसे वॉरियर्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, वो जब फॉरेस्ट वगैरह में जाते हैं और जब वहाँ पर वो लोग टेम्प्ररी वहाँ पर रुकते हैं ड्यूरिंग देयर कैंपियन. तो इन द कैंपियन ऑफ लाइफ, इन द bivouac ऑफ लाइफ, बी नॉट डम्ब ड्रिवन कैटल. यू डोंट हैव टू बी डम्ब. आपको इतना डम्ब नहीं रहना है कि आपको कोई जैसे ड्राइव करे वैसे आप उसके पीछे फॉलो करो. जैसे शीप होती है, ओके, तो वो जहाँ दूसरी शीप जाती है वहाँ जाती है, जहाँ शेफर्ड जाता है वहाँ जाती है. सो आपको यू डोंट हैव टू फॉलो विदाउट without having any purpose. You don't have to follow like a dumb driven cattle. Okay, you don't have to follow in such a way, in a blindfolded way. Be a hero in the strife. Okay, you have to be hero in the strife. You have to work hard, you have to fight for the good things. You have to increase your skill, develop your skill, and you have to beat the competitors. So you have to be the hero in the life instead of being just a dumb driven cattle. You have to struggle a lot, work hard a lot. पोएट कहते हैं कि अपनी दुनिया है वो एक युद्ध के मैदान की तरह है, जिस बड़े से युद्ध के मैदान में आपके काफ़ी कॉम्पिटिटर्स हैं. अभी जैसे कैंप होता है सोल्जर्स का, इन द कैंप ऑफ द लाइफ, बी नॉट लाइक द ड्रम ड्रिवन कैटल. ओके, जो सब करते हैं वैसा आप मत करो. यू हैव टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना. सो टू बी द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, टू बी द हीरो मीन्स नॉट ऑफ द मूवीज और समथिंग. टू बी द हीरो यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू बी बेटर. ओके, आपको अपने कल से अपने आज पे फोकस करना है और आने वाले कल को बेहतर बनाना है. यू हैव टू फोकस on your present, work in the present to get the benefit in the future.
So let us then be up, fourth stanza, let us then be up and doing, इसीलिए हमें खड़ा होना है, प्रयास करना है. We don't have to be lazy, we have to be active with the heart for any faith. और हमें ऐसी मेहनत करनी है, इतने बेहतर गुण अपने अंदर लाने हैं कि इतने मन से हमें काम करना है कि हमारा जो नसीब है ना, whatever our fate means नसीब, FATE, fate means नसीब. सो जो हमारा नसीब है ना, वो जो भी हो वो खुद ब खुद अच्छा हो जाए. ओके, जो हमारे नसीब में नहीं है, हमारे भाग्य में नहीं है, वो भी हमें मिले. तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें मेहनत करनी है. वो कहते हैं ना, कर्मों का फल अक्सर मिल ही जाता है. सो वी हैव टू वर्क विथ द होल हार्ट. हमें मन लगा के अच्छे से काम करना है, अपने अंदर की स्किल्स को डेवलप करना है. वी हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग एज वेल. सो लेट अस देन बी अप एंड डूइंग. इसीलिए चलो हम सब अपना काम पूरे जोश, पूरे मन के साथ करते हैं, और उसके बाद जो नसीब है ना वो भी बदल जाएगा. और हमें अचीव करते रहना है. स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बी अप एंड वी हैव टू डू आवर थिंग्स. हमें पूरे मन से सब कुछ करना है, और हमारा नसीब जो है उसमें जो भी लिखा होगा वो तो हमें मिलेगा ही, पर हमें मेहनत भी करनी है ताकि हमारा भाग्य है उसमें नहीं लिखा हो तो भी हमको मिलेगा. स्टिल अचीविंग, हमें और अचीव करते रहना है, और हमें ड्रीम्स हमारे होने चाहिए. वी हैव टू वर्क फॉर इट, right? We have to continuously work for it. We have to learn to labor. हमें काम करना भी सीखना पड़ेगा, right? We have to work and we have to do hard work and we have to wait. Okay, we have to wait for the good and sweeter fruits. So इसमें हमें बहुत सारी वैल्यूज़ सिखाई है इस पोयम में. ओके, पहले स्टैंजा में हमें लाइफ की इम्पोर्टेंस बताई है. लाइफ इज़ रियल, जीवन एक सत्य है और हमें जीवन को सीरियसली लेना है. ग्रेव हमारा गोल नहीं है, ग्रेव किसी का भी गोल नहीं हो सकता है. ग्रेव मीन्स कब्र. ओके, आवर गोल इज़ नॉट टू डाई. हम अपनी मृत्यु निश्चित नहीं करते हैं. वी हैव टू डिसाइड आवर गोल एंड मेक आवर लाइफ मीनिंगफुल. डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, वी आर मेड अप ऑफ डस्ट. हमें डस्ट से बने हैं और डस्ट में मिल जाएंगे. But this thing was not spoken about soul. This thing is spoken about our body, not of our soul. Soul is permanent. Not enjoying and not enjoyment and not sorrow. बहुत सुख या बहुत दुख जो है वो हमारे भाग्य में लिखा होता है, पर हम लोगों को मेहनत करनी है. वो हमारे भाग्य को हम अपने कर्मों से बदल सकते हैं. सो नॉट एन्जॉयमेंट, नॉट सॉरो इज़ आवर डिस्टाइंड एंड. वो हमारा नसीब जो है वो हमारा एंड नहीं है. ठीक है, इट इज़ ओके, इट इज़ सुख और दुख जीवन में आते हैं, दे आर पार्ट ऑफ द लाइफ, बट
we have to make our life meaningful, we have to increase our talent, okay, but to act each tomorrow, हमें रोज़ मेहनत करनी है, ताकि हमें आज में मेहनत करनी है ताकि हमारा आने वाला कल बेहतर हो। हम लोग जहाँ पर थे उससे हमें आगे बढ़ना है, ओके। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, वर्ल्ड इज सेट टू बी द फील्ड ऑफ बैटल where we are the warriors, we are the soldiers, okay, so we have to have courage, we have to work hard, so we don't have to be like a dumb driven cattle, and we have to be a hero and we have to struggle, okay, हमें साहस करना है, संघर्ष करना है। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, तो चलो आओ सब हम मेहनत करते हैं, साहस करते हैं, संघर्ष करते हैं, पूरे मन से करते हैं, ठीक है। फिर हमारा नसीब भी बदल जाएगा, हमारे नसीब में जो लिखा हो, पर हमें अपने आप को बेहतर करना है, अपने कल को बेहतर करना है, हमें अपने सपनों को फॉलो करना है। वी हैव टू फॉलो आवर ड्रीम्स, हमें अपने सपने देखने हैं और उससे पूरे करने के लिए मेहनत करनी है। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, हमें मेहनत भी सीखनी है, हमें मेहनत भी करनी है और हमें सब्र भी रखना है, राइट। सो all the great values are taught in this poem and how we should live our life, हमें अपना जीवन कैसे जीना है उसके बारे में हमें W.H. लॉन्गफेलो यानी वर्ड्सवर्थ हेनरी लॉन्गफेलो ने बताया है। होप दिस पोएम हैज़ इंस्पायर्ड यू अ लॉट। ओके चिल्ड्रन, बाय, टेक केयर।